Hey, what's up, guys? Welcome back to my channel, everyone. Hope you are doing well and great. So, I'm here to share with you the driving experience of the Tata Tiago XZ Plus, which we bought exactly a week before. So, let's start. चाबी घुमा दिया. There's a beautiful infotainment display. It's showing here low fuel, so I have to fill the fuel, but still can drive around 101 kilometer, 492 kilometers since a week which we have drawn. Last 3 days I haven't took the vehicle out, and बहुत लोग बोलते हैं कि टाटा में साउंड बहुत ज़्यादा आता है इंटीरियर में, तो एसी ऑफ है. सो आई एम जस्ट स्टार्टिंग इट. द व्हीकल इज स्टार्ट. गेयर डाल दिया. So I guess you can hear it clearly. There is no sound of the engine inside. I mean, the insulation is great. मुझे बाहर का भी मीन्स बहुत, अगर कुछ साउंड चल रहा है, कोई गाना भी चल रहा है, तो अंदर नहीं आएगा. और best part of the new Tiago BS6 is that it's much more refined than the previous versions. मास्क मैंने पहना नहीं है जानबूझ के, ताकि there is a view of mine. I mean, आप मुझे देख सकें. तो अभी मैं थर्ड गियर में हूँ. आई एम रेविंग इट अप. एसी ऑफ है. फोर्थ गियर में. So it's fine. Like, I won't feel any much vibrations of the vehicle inside. The steering is quite great. चलाने में मजा आ रहा है. The roads are great, so that's the best part. So drivability is very easy. You can easily drive it. Gears are very smooth. जैसे मैंने आपने कहा, ये है. इवन अगर आपको चढ़ाव भी करना है तो छोटे मोटे चढ़ाव तो आपको आराम से ले लेगा. देखिए, मैंने गियर चेंज नहीं किया है, बट स्टिल बड़े चढ़ाव है तो थर्ड में भी खींच लेगा आपको. फिलहाल तो मैं अकेला हूँ. तो लास्ट वीक ऑन संडे वी डिड अ लॉन्ग रोड ट्रिप फ्रॉम पतनमथिट्टा टू कोमरकोम. इट्स अराउंड 76 kilometers, and 5 people including a kid were sitting in the car, and we didn't feel any discomfort. और गाड़ी को भी मीन्स ऐसा कुछ नहीं लगा कि इट्स लैगिंग समवेयर. So it's quite smooth. बाहर का कोई वॉइस आ नहीं रहा है. एसी बंद है, so you can hear my sound very clearly. जब मैं रेव भी कर रहा हूँ फिर भी आपको उतना साउंड सुनाई नहीं देगा. So I'm driving around 60 now. तो इतना तो वो गाड़ी में आवाज आना ही चाहिए. और गियर नॉब के बारे में लोग कहते हैं कि बहुत वाइब्रेट होता है. There is a lot of vibration in the gear knob. I don't feel it's nil. I mean, the BS6 versions, Tata had made a very good job. They have refined it. बहुत लोग बोलते हैं 3 सिलेंडर है, वाइब्रेशन आएगा. It's not refined as Maruti or Hyundai vehicles. No. Tata vehicles are much more refined now. हॉर्न्स जो है आपके स्टीयरिंग के दोनों साइड्स में दिए हुए हैं rather than in the middle. So अगर हॉर्न मारना भी है, when you are holding the steering in 10 o'clock position, so it's very easy whenever you need to play a horn. So driving comfort is great. अगर आपको बता दो, I have been driving 800, Alto 800, उससे तो बढ़िया ही है. बजट सेगमेंट में this is one of the best, and this is the XZ Plus मॉडल. अगर आप सोचेंगे कि XZ Plus में ये सब है कंफर्ट, जी नहीं. It's there from the base variant itself. XZ Plus हम लोग क्यों लिए? ताकि we get a few other options of first of all, the seat
can be adjusted up and down, and we also get a touch screen infotainment system and a reverse parking camera, a defogger क्योंकि in Kerala rain a lot, and there should be a defogger and a rear wiper. It's a must. The sunrise had started late. I mean सवेरे उठ गया था, लेकिन वो जो लाइटिंग है it will be there only after 7:30. So 7:30 हो रहा है अभी in the morning. The roads are clear. कोई भी नहीं है रोड पे, बिना मास्क के चला रहा हूँ. So this driving is very smooth. इतने देर से I am only driving it on the fourth gear. Why? Because there is ups and downs in this area. तो मैं फिफ्थ में नहीं जा रहा हूँ. Still I'm driving at a speed of 50 kilometers per hour, and that's great. And I'll show you a vibration test of the vehicle. The driving comfort is great. You can see the view. Means पहली बार इसमें कार माउंट लगाया है तो थोड़ा बहुत सेट नहीं हुआ है. So again I had to adjust a little, but I guess clearly you can see the view. देखिए अभी मैं थर्ड पे चढ़ा रहा हूँ ये. चढ़ा लिया मैंने. The best part about the steering which I like is when you are on high speeds, especially on the highway, तो ये steering थोड़ा stiff हो जाता है क्योंकि आपको हाई स्पीड्स में कंट्रोल रहे. I feel like I'm driving a German car. Means Volkswagen Polo is the best loud car and the same durability. उसके टक्कर में जो गाड़ी है वो भी उससे कम प्राइस में, वो है टाटा टियागो. I mean the budget segment it's great. अराउंड अगर केरला की बात करी जाए तो आपको सेकेंड वेरिएंट आ जाएगा 6,05,000 में ऑन रोड प्राइस विच आई एम सेइंग. द XT प्लस Exert Plus is costing around 6,98,000 including insurance, everything. Accessories not included. Accessories के साथ आपको आएगा मड फ्लैप्स और कार मैट्स. बस अगर आपको फ्लोर मैटिंग कराना है सो आई सजेस्ट यू टू डू इट फ्रॉम आउटसाइड, नॉट फ्रॉम द शोरूम. बताता हूँ कि क्यों. द थिंग वाज दैट मुझे टाटा वालों ने अप्रोच किया, शोरूम के एक्सेसरीज पर्सन. उन्होंने कॉल करके मुझे कन्विंस करने की बहुत कोशिश की कि टेक ओरिजिनल टाटा एक्सेसरीज, क्योंकि एक्सेसरीज में ही कमाई है. तो दिल से फ्लोर मैटिंग हम कराएंगे, और फ्लोर मैटिंग जैसे आपका मीन्स डिलीवरी से पहले आप करा लेंगे तो इट्स ग्रेट दैट देयर वोंट बी एनी डस्ट और मड इनसाइड द कैबिन. इट विल बी क्लीन एंड यू कैन मेंटेन इट वेरी इजीली. और जो मैटिंग करा है उस पर वो लोग कहेंगे कि वी गिव वारंटी ऑन एवरी एक्सेसरी. आई मीन एवरी एक्सेसरी वेयर एंड टेयर. तो मुझे नहीं लगता ये एक्सेसरीज में वो लोग क्या देंगे. अगर अपन कुछ तोड़ देंगे, अगर हमें रेन गार्ड लेना था और रेन गार्ड उनके पास अवेलेबल नहीं था, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन मैंने कहा था और उनके पास स्टॉक अवेलेबल नहीं था, बहुत सारे डिलीवरीज थे तो प्री बुक थे, तो वहाँ पे वो लोग सारे अपने अपने
गाड़ी में इंस्टॉल कर दिए। तो मुझे ये गाड़ी में भी सिर्फ जो डोर पे विंडो पे लगता है रेन गार्ड वो लगाना है, तो वाइसर गार्ड जो आप जो भी कहें। सो दैट्स कॉस्टिंग अराउंड 2800 टाटा का, और बाहर आपको मिल जाएगा अराउंड 700 से स्टार्टिंग, डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी। लेकिन आपको टाटा का वो सेम नहीं मिलेगा, बट स्टिल इट्स फाइन। आप उसके आधे पैसे भी लगा देंगे, 2800 बहुत बड़ी बात है। एंड हर चीज़ में एक्सेसरीज का प्राइजेस मैं आपको दे रहा हूँ, हर चीज़ के प्राइसिंग थोड़ा हाई है। एंड दे से देगी वारंटी। ये फ्लोर मैटिंग मैंने कराया था, और इट्स अ नॉर्मल फ्लोर मैटिंग, वो आपको 1000-1200 में बाहर करके देगा। एंड फॉर दैट दे आर चार्जिंग अराउंड 3500 कहते हैं, 500 रुपये डिस्काउंट इस पे। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई दे डू दिस। तो हम लोग ऑल्ट्रोस लेने वाले थे, बट वी ड्रॉप्ड ओनली बिकॉज ऑफ द पार्किंग स्पेस इनसाइड आवर होम। एंड आई गेस वी आर मेड राइट डिसीजन बाय बाइंग द टियागो, और आई एम क्वाइट हैप्पी। इन फैमिली एवरीवन इज हैप्पी, क्योंकि सिटिंग पोस्चर जो है एकदम थोड़ा ऊंचा है। ये मारुति सुजुकी की गाड़ियां जैसा थोड़ा लो सीटिंग नहीं है। इवन पोलो इज वन ऑफ माय फेवरेट कार, एंड वेयर इट्स लैकिंग इज द ग्राउंड क्लियरेंस। 170 mm ग्राउंड क्लियरेंस वी हैव इन टियागो, 165 अगर आपको ऑल्ट्रोस लेना है तो 165। Hyundai ग्रैंड आई10 नियोस भी बढ़िया दिखता है, दिखने में तो गाड़ी बढ़िया है, इससे भी थोड़ा और स्पेशियस भी रहेगा। और डिजाइन अगर इंटीरियर भी देखा जाए इट्स ग्रेट, बट इट्स नॉट ऑल अबाउट द डिजाइन एंड द फीचर्स। आप कितने फीचर्स यूज करोगे? यू विल ओनली यूज अ फ्यू फीचर्स। हाँ, आपको दूसरों को बोलने के लिए रहेगा कि यू हैव अ फीचर कार, बट स्टिल एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स is safety. So guys, change your mind, buy a car which is safer for you and your family. और एवरेज की बात की जाए तो एज आई टोल्ड, अभी चलाते चलाते 500 चेंज किलोमीटर हो गया, 508 किलोमीटर टू बी प्रोसाइज, 508 किलोमीटर हो रहा है। मुझे एवरेज एट द बिगनिंग जो है 15-16 का एवरेज मिल रहा है। आई मीन स्टार्टिंग जब गाड़ी लिया था 100 किलोमीटर तक तो मुझे 13.5-14 का माइलेज ही आ रहा था। और आई डू अंडरस्टैंड इन द बिगनिंग, जबकि आपका एक सर्विस ना हो जाए आपको माइलेज कम मिलता है। इट्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ यू ड्राइव, ऑन विच गियर यू ड्राइव। बड़ा भाई ऑल्ट्रोस, ये शादी है, यहाँ पे शादी ही है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, द माइलेज आपको जो आएगा कि आप अगर एग्रेसिवली ड्राइव कर रहे हो, इफ यू आर ड्राइविंग वेरी एग्रेसिवली एंड यू डोंट केयर अबाउट द गियर्स, देन योर माइलेज विल बी लेस। कोई भी कार हो भाई, माइलेज आपको कम मिलेगा। अगर आपको जो स्पीड है जो गियर के हिसाब से मेंटेन करना है, so since I am driving in third gear now, तो जैसे ही मैं थोड़ा और ऊपर जाता हूँ और स्पीड ऑफ 45+50 तक आता हूँ, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक एरो दिखाई देगा। गियर पोजीशन इंडिकेटर है और एक एरो दिखाई देगा। थिंग इज दैट यू शुड चेंज द गियर। दैट्स द बेस्ट पार्ट इन दिस। आई मीन द डिजिटल डिस्प्ले इज ऑसम। जो जरूरी है आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब है यहाँ पे। हाँ, गियर पोजीशन, कौन से गियर पे आप चला रहे हो, फ्यूल का है, सब है डिजिटल। इट्स ऑल डिजिटल। कितने किलोमीटर एंड आप पेट्रोल भरते हो तो कितने किलोमीटर से आगे जाएगा, एवरीथिंग एल्स विल बी श्योर। हाँ, हर गाड़ी परफेक्ट नहीं होती है। देयर इज ऑल्सो कॉन्स इन एवरी व्हीकल। द कॉन्स, first thing which I can say is that at least in the coming models Tata can add DRLs to get a cosmetic feel, aesthetic feel। DRL जैसे अपने टिगोर में दे दिया,
वैसे आप यहाँ नीचे इसके फॉग लैम्प्स के ऊपर लगा सकते हैं, तो वो थोड़ा एक अपीलिंग रहेगा. एंड आई डोंट वांट टू चेंज द डिजाइन. डिजाइन इज परफेक्ट इन दिस. सो दिस इज व्हाट दे कैन चेंज. And another thing which they can is that they can increase the legroom for the rear passenger. It's quite fine. अगर मैं 5'10" और मेरे सीट एडजस्ट करने के बाद भी अगर मैं पीछे बैठता हूँ, या फिर अगर 6 फुट का आदमी भी बैठता है, so I'm comfortable sitting. There's a good room inside for me. But let me remind you, this car is only for 4 passengers, 4 healthy passengers. And if you are including a kid, then it's fine, 5 people. But 4 people can comfortably sit in a car. Thigh support is good. अगर आप लॉन्ग भी जा रहे हो तो it's fine. You won't get tired in this. And the driver's seat is superb. I mean, in the front you have bucket seats, so you have ambient legroom here. It's great. अच्छा है यहाँ पे चलाने के लिए भी. संडे इसलिए गाड़ियाँ कम हैं. एंड द फ्रंट इज ग्रेट यार. अगर आपको और थोड़ा मॉडर्नाइज्ड फील लाना है, सो यू कैन इंक्लूड अ प्रोजेक्टर हेडलैम्प. LED अगर आपके बस में है तो आप LED लगा लीजिए, बट आई सजेस्ट प्रोजेक्टर्स आर गुड. LED DRLs लगा दीजिए. एंड द मेन थिंग यू कैन चेंज इज द टेल लाइट. आई गेस इन द फ्यूचर टाटा विल बी चेंजिंग द डिजाइन ऑफ the rear or the tail of Tiago. I mean वो वैसी है. लाइटिंग कन्वेंशनल लगता है. पीछे सामने से तो गाड़ी बढ़िया दिखती है. In future I guess Tata will also include a